संतुलन और बना रहेगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि उनके मेन गेंदबाजों को आराम लेने का काफ़ी समय मिलेगा जब ऐसी गेंदबाजी हो रही होगी जो कि भले ही विकेट ना निकाले लेकिन रन भी देती नजर नहीं आएगी। लेकिन पिछले 2 ओवरों से 2 चौके लग चुके हैं, ये भारतीय टीम के लिए अच्छे संकेत हैं। और अगर भारतीय टीम यहाँ पर इस प्रकार का स्कोरिंग रेट बरकरार रखती है तो यहाँ पर भारतीय टीम अपनी तरफ ये मुकाबला खींच सकती है। पकड़ मजबूत करने की कोशिश में यहाँ हार्दिक पांड्या और केएल राहुल बैटिंग आगे बढ़ाएंगे। अगली गेंद के साथ यहाँ पर शॉन एबट अपने देखा जाए तो दूसरे छोर से वापस आएंगे, लेकिन अपने दूसरे ओवर में लगाए जाएंगे। पहली गेंद के साथ कैमरन ग्रीन ओवर द विकेट से लेकर तैयार अपनी अगली गेंद दाहिने हाथ के एक और बार केएल राहुल। To all the sports fan out there, I hope you all are ready to make some money while enjoying your favorite games. And do you know what the best part is? You can earn some cash even if your team loses. Often, you win even if you lose. Confused? Don't be. Let me tell you how it works. It's super interesting. First things first, head over to fairplay1.in. Their website is super easy to find. Provide a few basic details to register. Their UI is user friendly and you all can spot the register icon on the top right corner quite easily. We can register via WhatsApp or through the website itself. Once you have registered, it's time to log in. Now on the top bar, you can see 7 different options. First, starting off with in-play, here you can have an overview of everything that Fairplay has to offer. Second, next in line we have Sports Exchange. Here you'll see a list of live matches. Choose the match you want to make predictions on and you'll get all the details. And guess what? You can even predict every single ball. To place a bet, you'll see the back and lay options. If you think your team will win, click on back. And if you think it's going to lose, click on lay. Third, after this, we have Fantasy Pro. With this, you can make your own team by choosing 11 players and bases their performance in the match, you can earn points. Fourth, the fourth option that we have is Sportsbook. Here you can see the top matches, live matches and the upcoming events. Fifth, post that we have live casino, live card and slot games. In all 3 of these, you get multiple game options. You can choose the game of your choice, play and earn exciting rewards. Coming to the most important part, deposit. To start playing, you need to add funds to your profile. Just click on the deposit option right here and you will see various methods to deposit. Now, here's a welcome gift. 300% bonus on your first deposit and a 50% bonus on your second deposit. Exciting? Wait, it gets better. With Fair Play, even if you lose, it offers part of it back. This loss back applies to all the IPL matches, which means that you make predictions stress-free. Because even if you lose, you get 5% back just like that. Now, after you have won some cash, to withdraw it, all you have to do is provide your bank details here and the money will be transferred within 5 minutes. You can withdraw your winnings 24/7. So, what are you waiting for? Head over to fairplay1.in. Register now, start predicting and making big wins. And don't worry about losing, because on Fair Play, you will still win. के लिए 23 गेंदों में 17 रन पर नाबाद बने हुए 3 चौके लगाकर देखना है केएल राहुल आगे बढ़ते हुए किस प्रकार का रवैया दिखाते हैं, क्योंकि किसी एक या दो ऐसे गेंदबाजों को चुनना होगा भारतीय टीम को जिन्हें लगातार निशाना बनाकर उनके खिलाफ रन बनाने होंगे। क्या कैमरन ग्रीन उसमें से एक खिलाड़ी हैं? पहली गेंद ग्रीन की एक स्लिप के साथ ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के राहुल के लिए ऑस्ट्रेलिया की लाइन में शॉर्ट पिच गेंद अचानक से उछल गई, बल्ले के बाहरी किनारे के साथ गेंद ऑफ साइड में जा चुकी है। एक और डॉट के लिए काफी मुश्किल गेंद यहाँ पर कैमरन ग्रीन की तरफ से है। ग्रीन ने यहाँ पर गेंद को जिस प्रकार के उछाल के साथ लंबाई के साथ डाला, बल्लेबाज को चुनौती पेश की है। देखना है इस प्रकार के गेंद को देखते हुए आड़े बल्ले का उपयोग नहीं किया इस बार राहुल ने गेंद को काफी सीधे बल्ले के साथ खेल दिया है। एक और डॉट के लिए 58 पर 4 यहाँ पर भारतीय स्कोर बना हुआ है। 15वें ओवर में राहुल 17 रन पर हैं, हार्दिक पांड्या 11 रन पर हैं। भारत को जीतने के लिए 131 रनों की जरूरत है 215 गेंदों में, और कैमरन ग्रीन यहाँ पर फिलहाल अपनी दूसरी गेंद के साथ आएंगे। एक स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्टिन की लाइन से बैकफुट पर हटते हुए बल्लेबाज ने शॉर्ट कवर पर गेंद को खेल दिया। एक और डॉट आ चुका है। गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर फिलहाल कैमरन ग्रीन अपने दूसरे ओवर में आते हुए, जहां पर इससे पहले बल्लेबाजी में भी आए थे, रन उतने नहीं बना पाए थे, लेकिन गेंदबाजी से यहाँ पर योगदान दे सकते हैं। कैमरन ग्रीन नजर आने वाला है सबसे महंगे खिलाड़ियों में से हैं, जो कि इस साल मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए इसी मैदान पर नजर आएंगे। तो इनका ये होम ग्राउंड आने वाले हफ्तों में अपनी अगली गेंद के साथ लौटेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक स्लिप के साथ ओवर द विकेट से पैड फ्राई मिडलसन की उछाल भरी गेंद बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया इसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। एक और सिंगल के लिए दौड़े हैं। सिंगल की मदद से स्कोर भारतीय टीम का आगे बढ़कर 59 रनों का है। राहुल 18 पर हैं, पांड्या 11 पर हैं, और दोनों के बीच में लगी पार्टनरशिप ये मुकाबले की सबसे जरूरी पार्टनरशिप है। जडेजा इसके बाद आएंगे, वो भी पारी को संभालते और रन गति को तेज करने की कोशिश में। देखना है
इस प्रकार आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन टोटल बल्लेबाजों की संख्या कम होती चली गई है। 4 ही यहाँ पर बल्लेबाज जो शुरुआत समय में आउट होकर चले गए, उसके बाद से 2 और बचे हैं केवल शार्दुल ठाकुर को अगर ऑलराउंडर की भूमिका में माना जाता है। हार्दिक पांड्या के लिए अगली गेंद, बल्लेबाज ने ऑस्टिन के बाहर से कट करते हुए गेंद को पहुंचा दिया एक और बार बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। करारे शॉट आ रहे हैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से बैकफुट पर जाते हुए आक्रामक होकर कप्तान पांड्या का यह तीसरा चौका है पिछले कुछ समय में। स्ट्राइक रेट 115 का गेंदों में। और विकेट से आकर पटकी गई गेंद पर बल्लेबाज ने आड़े बल्ले से कट शॉट लगाकर शानदार अंदाज में गेंद को गैप में खेला, खिलाड़ी से दूर खेला, सर्कल के अंदर के खिलाड़ियों के बगल में से और थर्ड मैन खिलाड़ी से काफी दूर से खेलते हुए चौका हासिल करते हुए स्कोर भारतीय टीम का कर जाएंगे 63 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर, जहां पर केएल राहुल 18 रन पर है 26 गेंदों में। पांड्या पीछे से आकर अब नजदीक पहुंच रहे हैं राहुल के स्कोर के, 15 रन तक पहुंच चुके हैं। यहां पर फिलहाल देखा जाए हार्दिक पांड्या इस प्रकार की शुरुआत के साथ काफी पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं। यहां पर ज्यादा तेज गेंदबाजी जारी रखेंगे यहां पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए हार्दिक पांड्या, जो कि फिलहाल चौका लगा चुके हैं। देखना है अगली गेंद पर उन्हें जारी रखा जाएगा या कोई परिवर्तन होता है। इसी बीच हम देख रहे हैं भारतीय टीम के डगआउट में रोहित शर्मा यहाँ पर विराट कोहली बैठे हुए हैं, विराट कोहली के साथ ईशान किशन बैठे हुए हैं। चर्चाएं चल रही है लेकिन परिस्थिति भारत की अभी भी काफी खस्ता है। एक बात यहाँ पर भारतीय के लिए काफी बढ़िया रही है कि जब से हार्दिक पांड्या मैदान पर आए हैं तो यहाँ पर रनगति में काफी बढ़िया बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले 3 ओवरों में 19 रन बनाते हुए भारतीय रन रेट को 6 के आगे का बनाया हुआ हार्दिक पांड्या ने, और सामना करते रहेंगे हार्दिक पांड्या। गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं यहाँ पर तेज गेंदबाज का, या फिर देखना है पहला स्पिनर गेंदबाज यहाँ पर लगाया जाता है। स्पिनर गेंदबाज आने के बाद से भारतीय टीम को आसानी हो सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं मार्कस स्टोनिस को लगाया जा रहा है। मार्कस स्टोनिस यहाँ पर अपनी तेज गेंदबाजी को लेकर लौटेंगे ओवर द विकेट से हार्दिक पांड्या के लिए, जो फिलहाल 16 रन पर है 15 गेंदों में। अगली गेंद के साथ लौटेंगे मार्कस स्टोनिस अपनी शुरुआती गेंद दाहिने हाथ के हार्दिक पांड्या के लिए। एक स्लिप के साथ ये गेंद बल्लेबाज के लिए पैड पर लेग स्टंप की लाइन में फ्लिक करने के लिए गए, गेंद सीधा पीछे शॉट फाइनली से खिलाड़ी के हाथों से थ्रो आएगी, तब तक बल्लेबाज ने सिंगल पूरा कर लिया। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर विकेट कीपर ने जाकर गेंद को रोका है। शॉट फाइनली के इलाके से सिंगल निकालने के बाद लेग बाय का रन पूरा करने के बाद स्ट्राइक वापस राहुल के पास लौटेगी, तो केएल राहुल एक छोर को पकड़े रखते हुए पारी को लंबा करने के इरादे के साथ बैटिंग कर सकते हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या ने आकर जो गति प्राप्त की है इसका फायदा भारतीय टीम को आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जैसे ही भारतीय टीम 100 रनों को लांघेगी, कहीं ना कहीं एक स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही होगी, तब जाकर फायदा मिलेगा। जब यहाँ पर हार्दिक पांड्या और राहुल जब बने हुए होंगे, आक्रामकता और आसान हो सकती है। इस समय पर कुछ समय ऐसा बिताना भारत को जरूरी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को कोई विकेट ना मिले। इस बात के आत्मविश्वास को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के तोड़ना होगा, जहाँ पर उन्हें लगातार अंतराल पर विकेट मिलते चले गए हैं। यहाँ पर कुछ समय तक अगर विकेट नहीं मिलता है तो इनके भी आत्मविश्वास को ठोकर पहुंचेगी। फिर देखना है किस प्रकार से मुकाबला बन पाएगा, लेकिन एक लो स्कोरिंग मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा रोमांचक तरीके से सेटअप कर दिया है। अगली गेंद के साथ लौटने के लिए तैयार यहाँ पर तेज गेंदबाज मार्कस स्टोनिस, मध्यम गति के तेज गेंदबाज दाहिने हाथ के राहुल के लिए, जिन्होंने अब गेंदबाज को रोक दिया है। तैयार नहीं है बताया यहाँ पर केएल राहुल ने, वो गार्ड लेते हुए तैयारी कर रहे थे और उतने में गेंदबाज ने दौड़ना जब शुरू किया, राहुल ने यहाँ पर खेलने से मना कर दिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया भी काफी बार कर रहा था। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज भी लगातार भारतीय तेज गेंदबाजों को बॉलिंग रनअप पर जाने के लिए मजबूर कर रहे थे, दूसरी बार लगातार एक गेंद आने के लिए। अगली गेंद बल्लेबाज ने इस बार गेंद को पैड पर से सीधे बल्ले के साथ खेल दिया, मिस फील्डिंग होती हुई मिड ऑन पर गेंद चली जाएगी चौके के लिए। सीधे बल्ले के साथ बल्ले के बीचों बीच से खेलते हुए सीधे बल्ले के साथ इतने तकनीकी अंदाज में कि गेंद बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बढ़िया टाइमिंग के साथ निकली, और खराब फील्डिंग का नतीजा रहा कि यहाँ पर भारत को एक और चौका मिलता हुआ। चौके की मदद से भारतीय स्कोर 69 का हो जाएगा 4 विकेटों के नुकसान पर। ये गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में थी, थोड़ा हवाई तरीके से खेली गई थी। एडम जैम्पा फील्डिंग कर रहे थे, उनके सामने गेंद ने अचानक से बाउंस लिया और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन तक जा चुकी है चौके के लिए।
तो पैरों के बीच में से निकल गई ये गेंद, फील्डर के हम देख पा रहे हैं। स्टीवन स्मिथ इससे ज़्यादा नाराज नहीं है क्योंकि परिस्थिति ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी बनी हुई है, तो एक आध चौका यहाँ वहाँ उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर पा रहा है। अगली गेंद यहाँ पर पैड पर बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट पर, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट तक एक और सिंगल के लिए। स्कोर है 70 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर। तो ऑस्ट्रेलिया इस दौरे पर आने के बाद से ऐसे बहुत कम मौके देख चुका है जहां पर वो किसी प्रकार भारतीय टीम पर हावी हो पाए हों। टेस्ट मैचों में भी देखा जाए, इंदौर टेस्ट मैच तो उन्होंने जीता, लेकिन पहले 2 टेस्ट मैच और फिर आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने भी लगातार पकड़ मजबूत रखते हुए ऑस्ट्रेलिया को काफी ज्यादा बड़ी चुनौती हर मैच में पूरे पैदा की थी। यहाँ पर आते हुए देखा जाए ऑस्ट्रेलिया जरूर थोड़ी बहुत पकड़ अपनी मजबूत कर चुका है और काफी ज्यादा देखा जाए हावी होने के इरादे के साथ आने के बाद सफल भी हुआ है, और इससे इन्हें जो मनोबल मिलेगा इसका ये फायदा उठाते हुए यहाँ पर स्टीवन स्मिथ काफी बार हम देखते हैं तो और भी ज्यादा यहाँ पर चतुर कप्तान बन जाते हैं, सारी टीम को उठाकर हौसले से भर देते हैं, और वही फिलहाल यहाँ पर करते नजर आए आज के दिन पर भी। एक स्लिप के साथ ओवर द विकेट से बल्लेबाज के लिए गेंद ऑस्ट्रेलिया के बाहर से ढकेलते हुए खेल दिया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर, एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। 70 पर 4 भारत का स्कोर बना रहेगा। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें बाकी हैं। बाजी लेकर आ रहे हैं यहाँ पर तेज गेंदबाज मार्कस स्टोइनिस अपने तीसरे ओवर में, और लगभग 5 का इकोनॉमी रेट दिखा चुके हैं। 13 रन खर्चने के बाद 1 विकेट निकाल चुके हैं। मार्कस स्टोइनिस यहाँ पर अपनी गेंदबाजी को लगातार जारी रखेंगे। अपनी अगली गेंद लेकर हार्दिक पांड्या के लिए वापस लौटेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर आते हुए 11 चौके यहाँ पर लग चुके हैं भारतीय पारी में। 70 पर 4 भारतीय स्कोर बना हुआ है। इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर एक स्लिप के साथ दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ऑस्टिन के बाहर गुड लेंथ की लंबाई पर, बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पर आते हुए गेंद को खेल दिया कवर पॉइंट पर, खिलाड़ी के हाथों में एक और डॉट के लिए। स्कोर 70 रनों का बना रहेगा। 4 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद अब बाकी है। भारतीय टीम 119 रन पीछे चलती ऑस्ट्रेलियन स्कोर से, और अभी भी देखा जाए ये एक पहाड़ जैसा लक्ष्य नजर आता हुआ जो होना तो नहीं चाहिए था। पावर प्ले में अगर दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाज अगर 40-50 रन की शुरुआत भी दिला देते तो यहाँ पर देखा जाए 1/4 रन लगभग बनते नजर आते हैं, और ये यहाँ पर भारतीय टीम के लिए रन चेस करने में आसानी पैदा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय टीम लगातार 2-3 विकेट खो गई और उसके बाद सिर्फ 4 विकेट डाउन 70 पर चल रही है। अगली गेंद यहाँ पर लेकर आने के लिए स्टोइनिस तैयार। ओवर द विकेट से बल्लेबाज के लिए पैड पर लेग स्टंप की लाइन में बल्लेबाज सीधा बल्ला दिखाकर खेल गए गेंद को मिड ऑन क्षेत्र में, एक और डॉट के लिए। 188 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर भारतीय टीम को 70 पर 4 कर दिया है। 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। हार्दिक पांड्या 16 रन पर हैं, राहुल 23 रन पर 28 गेंदों में। मार्कस स्टोइनिस अपने 3 ओवरों की समाप्ति कर चुके हैं। 4.3 का इकोनॉमी रेट यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस का नजर आता है। गेंदबाजी लेकर यहाँ पर दूसरे छोर से देखना है स्टोइनिस के साथ। अब वापस लौटेंगे तेज गेंदबाज शॉन एबट या कैमरन ग्रीन। इस प्रकार से यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं इस छोर से, क्योंकि पहले गेंदबाजी शॉन एबट कर रहे थे, वहां से स्टोइनिस को लगाया गया। दूसरी तरफ से ग्रीन गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहां से भी परिवर्तन हो सकता है। आने वाले बल्लेबाजों में रविंद्र जडेजा है, उनके बाद शार्दुल ठाकुर हैं। वर्ल्ड कप के साल में रविंद्र जडेजा की वापसी हो रही है। इससे पहले वो आखिरी बार सफेद गेंद के फॉर्मेट में नवंबर में खेले थे T20 वर्ल्ड कप के दौरान। उसके बाद से देखा जाए अब सीधा टेस्ट मैचों के बाद रिकवर होने के बाद सीधा यहाँ पर वनडे मैचों में नजर आएंगे। और रविंद्र जडेजा जो कि पिछले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में बड़े खिलाड़ी नजर आए थे, मुश्किल परिस्थिति से भारत को बाहर निकालने की कोशिश में थे, यहाँ पर उसी प्रकार की परिस्थिति बन चुकी है। और मुंबई के इस मैच को अगर भारत को जीतना है तो राहुल, पांड्या और जडेजा तीनों को भी बड़े रन बनाने होंगे। जडेजा आने वाले बल्लेबाज है, लेकिन उससे पहले एक पार्टनरशिप लगी हुई है। ग्रीन की इस बार ये गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, बल्लेबाज ने पुल शॉट लगाना चाहा, मिस टाइम तरीके से गेंद को खेल दिया मिड ऑन क्षेत्र में, एक और सिंगल के लिए। सिंगल के साथ बल्लेबाज आपस में क्रॉस कर जाएंगे। राहुल के पास से हार्दिक के पास स्ट्राइक आ जाएगी। 71 पर 4 जहां भारत का स्कोर बना हुआ है। कैमरन ग्रीन अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटने के लिए तैयार होंगे। ओवर द विकेट से यहाँ पर लगातार गेंदबाजी कैमरन ग्रीन की तरफ से जारी है। तीसरे ओवर में 14 रन खर्चते हुए 6.5 का लगभग इकोनॉमी रेट नजर आ रहा है। हार्दिक पांड्या यहाँ पर सामना करते रहेंगे ग्रीन की गेंदबाजी का। ओवर द विकेट से अगली गेंद को आड़े बल्ले से कट करते हुए अपर कट देकर खेल दिया सीधा छक्के के लिए। थर्ड मैन के ऊपर से खिलाड़ी ने यहाँ पर छक्का जाते हुए देखा है। पटकी हुई गेंद को बल्लेबाज ने अभी तक लगातार जमीनी तौर पर चौके लगाकर थर्ड मैन पर से रन बनाए थे, लेकिन इस बार हवाई तरीके से आगे बढ़ने का फैसला लिया और हवाई तरीके से गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी के ऊपर से ही अपर कट मारते हुए छक्का लगाकर भारतीय स्कोर को कर दिया है 77 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर। तो माना जा सकता है कि हार्दिक पांड्या वो पारी भारत के लिए खेल रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श खेल गए थे। 81 रन की बल्लेबाजी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श की तरफ से। 65 गेंदों में हार्दिक पांड्या 20 गेंदों में 22 रन पर जा चुके हैं। छक्के की मदद से भारतीय स्कोर को आगे बढ़ाते हुए स्कोर में 7 रन का इजाफा इस ओवर में हो चुका है। अगली गेंद इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया की लाइन में गुड लेंथ की लंबाई पर से फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने गेंद को शॉर्ट कवर मिड ऑफ पर खेल दिया, एक और डॉट के लिए। तो 77 पर 4 भारतीय स्कोर बना रहेगा। 17वें ओवर में राहुल हैं 24 रनों पर 29 गेंदों में। हार्दिक पांड्या है 22 रनों पर 21 गेंदों में। और सामना होता रहेगा यहाँ पर तेज गेंदबाजी का कैमरन ग्रीन, जो कि ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर आने के लिए वापस तैयार होते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लगातार यहाँ पर गेंदबाजी होती रहेगी।
कैमरन ग्रीन अपनी ओवर द विकेट से अपनी इस ओवर की चौथी गेंद के साथ। हार्दिक पांड्या जो कि 22 रन पर नाबाद एक स्लिप के साथ सामना करते हुए गेंद को मिड स्टंप की लाइन से सीधा बल्ले के साथ खेल जाएंगे सीधा शॉट कवर खिलाड़ी के हाथों में, एक और डॉट के लिए। पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाए मारने का इरादा नहीं था, ज़्यादा आगे आते हुए गेंद को गैप में खेलने पर सोच रहे थे लेकिन उसमें गैप नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर भारतीय पारी में 11 चौके और एक